Hello students. Today we are going to study unit number 16, Chemistry in Everyday Life. First of all, title Chemistry in Everyday Life means how we use the chemistry in our day-to-day purpose, in day-to-day life. So our this chapter is going to teach us that in different areas in our routine schedule we use the chemicals or a different type of chemistry based material or chemical based material in our whole day. Okay, so let's begin chapter number 16, Chemistry in Everyday Life. By now you have learned that basic principles of chemistry and also realize that it influences every sphere of human life. अब तक हमें पढ़कर 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री पढ़ा और हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी केमिस्ट्री पढ़ा, तो अब तक हमें केमिस्ट्री पढ़कर इतना तो समझ में आ चुका है कि केमिस्ट्री हमें कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे कहाँ कहाँ पर हमें अफेक्ट करती है. द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री हैव बीन यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. केमिस्ट्री हमारी लाइफ को और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, थिंक ऑफ द क्लीनलीनेस. दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल कि क्लीनलीनेस पर्पज़ के लिए, दैट मीन्स हम सुबह से उठते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेस्ट यूज़ करते हैं. ओके, तो वो हमारे टीथ क्लीन करने के लिए है. हम नहाने के लिए साबुन यूज़ करते हैं. ओके, सो डिफरेंट जगह पर हम डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करते हैं एंड ऑल दिस मटेरियल्स आर बिलोंग टू द केमिस्ट्रीज. ओके, द मटेरियल लाइक सोप, डिटर्जेंट, household bleaches, toothpaste, etc. will come to your mind. Now look forward the beautiful clothes. Immediately, chemicals of the synthetic fibers used for the making clothes and chemicals giving colors to them will come to your mind. जब हम रंग बिरंगी कपड़े देखते हैं हमारे, तो हमें तब सबसे पहले स्ट्राइक होता है कि हमारे कपड़ों पर जो कलर लगा हुआ है, डिफरेंट कलर्स है, वो कलर्स भी क्या है, वो कलर्स भी एक टाइप के केमिकल्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फूड मटेरियल्स. अगेन अ नंबर ऑफ केमिकल्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस यूनिट विल अपीयर इन योर माइंड. फूड मटेरियल्स की बात करते हैं, जैसे अलग अलग फूड में हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड को हमें लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना है तो हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं. तो व्हाट आर दिस प्रिजर्वेटिव्स? These preservatives are also one kind of chemicals. Clear? So that we use the chemicals also in a food materials. Now, of course, we are going to take a best example of chemicals that we use, and that is the medicine. Okay, what is a medicine actually? So medicine, we all know that all the allopathic medicines or any of the medicines, they are one kind of chemicals by which our metabolic processes regulate in our body and we are हम जो है कोई भी डिजीज से क्योर हो जाते हैं. तो दिस मेडिसिन्स आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ केमिकल्स. अनदर एग्जाम्पल्स लाइक एक्सप्लोजिव्स, फ्यूल्स, रॉकेट, propellants, building and electronic material, etc. are all chemicals. Chemistry have influenced our life so much that we do not even realize that we come across the chemicals at every moment. केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ को हर एक जगह पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हम केमिस्ट्री के बिना या केमिकल्स के बिना हमारी लाइफ को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं. So that we ourselves are beautiful chemical creation and all our activities are controlled by chemicals. हम हमारी बात करते हैं. All the animals, or if we take examples of our human body, it is also composed of different kind of chemicals. Now question, हमारे बॉडी में chemicals? Yes, the enzymes, the hormones, the carbohydrate, proteins, they are also one kind of chemicals. Clear? So in this unit we shall learn the application of chemistry in three important and interesting areas. These three areas are, first one is a medicine,
सेकंड वन इज़ अ फूड मटेरियल एंड थर्ड वन इज़ अ क्लिनजिंग एजेंट। इस चैप्टर पे हम 3 मेजर सेक्टर जहाँ पर केमिस्ट्री का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है उसका स्टडी करेंगे। सबसे पहला है मेडिसिन, दूसरा है फूड मटेरियल एंड तीसरा है क्लिनजिंग एजेंट। ओके, सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट topic, drugs and their classification. Yes, what is actually a drug? That question arises in our mind. Drugs क्या है? So drugs are the chemicals of low molecular masses. खास इसको ध्यान रखना, the drugs are the chemicals of low molecular masses. These drugs interact with the macromolecular target and produce a biological response. ये ड्रग जो है वो हमारे बॉडी में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है ड्रग की हमें कब ज़रूरत पड़ती है? तो हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिक प्रोसेस इम्बैलेंस हो जाती है तब हमें ड्रग्स की रिक्वायरमेंट आती है। और ये ड्रग्स इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो डिस्टर्ब हुई है, अनबैलेंस हुई है, उसको वापस रेगुलेट करता है। और इस रेगुलेट करने को यहाँ पर हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक, नाउ द थेराप्यूटिक दैट मीन्स एक टाइप का क्योर करने वाला ट्रीटमेंट। ओके, सो व्हेन द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज अ थेराप्यूटिक एंड यूजफुल, these chemicals are called medicines and are used in a diagnosis, prevention and treatment of disease. Yes, ड्रग्स का 3 जगह पर यूज़ किया जाता है। एक, डिजीज़ को पहचानने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, डिजीज़ को ज़्यादा होते हुए रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन में, एंड डिजीज़ को क्योर करने के लिए, दैट मीन्स ट्रीटमेंट में। अब एक चीज़ हमें मालूम है कि कोई भी मटीरियल अगर हम कुछ हद से ज़्यादा अगर उसका इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ पॉइजन। सेम लाइक दैट, if drugs are taken in doses higher than those recommended, most of the drugs used as a medicine are potential poisons. That means they are going to act as a poisons. Now the most important, what is the chemotherapy? तो कोई भी केमिकल का डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जब यूज़ किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कीमोथेरापी। वंस अगेन, यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरापी। सो हियर वी आर गोइंग टू बिगिन आवर न्यू टॉपिक, that is a classification of drugs. Okay, so drugs are classified in a 4 types. First one, on the basis of pharmacological effect. Second one, on the basis of drug action. Third, on the basis of chemical structure. And the fourth one is on the basis of molecular targets. Clear? So first of all, drugs are classified in 4 types. So let's begin with the first type, on the basis of pharmacological effect. Now what is a pharmacological effect? So अगर हमें कोई पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ होते हैं, पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर वहाँ पर स्पेसिफिक टाइप का केमिकल दैट मीन्स ड्रग्स यूज़ करते हैं। मतलब पर्टिकुलर ड्रग पर्टिकुलर इफेक्ट को क्योर करता है या उसको प्रिवेंट करता है। तो ऐसे जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को कहा जाता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स because it provides them the whole range of drugs available for the treatment of particular type of problem. For the example, analgesics have a pain killing effect. अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है जिसको बॉडी में कोई भी जगह पर पेन हो रहा है तो डॉक्टर वहाँ पर यूज़ करेंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स। अब एनाल्जेसिक ड्रग्स डिफरेंट टाइप की होती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इफेक्ट डॉक्टर वहाँ पर एनाल्जेसिक ड्रग ही यूज़ करेंगे। वो वहाँ पर एंटी हिस्टेमाइन
ड्रग या एंटी कैंसरियस ड्रग जो है वो यूज़ नहीं करेगी। दैट मीन्स कि भाई पेन किलिंग इफेक्ट है, वो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली एनाल्जेसिक्स ड्रग्स का यूज़ करना है। ओके या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्किन पर कोई इफेक्ट हुई है तो एट दैट टाइम एंटीसेप्टिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम में जब पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग का यूज़ किया जाता है तो उसको कहा जाता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एनाल्जेसिक हैव अ पेन किलिंग इफेक्ट and antiseptic kills or arrests the growth of microorganism. Clear? So that is the first on the basis of pharmacological effect. Second, classification of drugs on the basis of drug actions. It is based on the action of a drug on a particular biochemical process. See, ऊपर क्या था कि पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम है तब जो ड्रग यूज करते हैं, that is on the basis of pharmacological effect. बट अगर हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस अफेक्ट हुई है, मतलब पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस प्रॉपर वे से नहीं हो रही है, तो वहाँ पर ड्रग का यूज़ किया जाता है और वो ड्रग उस बायोकेमिकल प्रोसेस को ही रेगुलेट करेगा, मतलब उसको क्योर करेगा। तो ऐसी जो इफ़ेक्ट है, जो ड्रग ऐसी इफ़ेक्ट को, ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस को क्योर कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर एक एक्शन ही कर रहा है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा उसके बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। लेट्स स्टडी इन डिटेल। इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एंटीहिस्टामाइन इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामाइन विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। दैट मीन्स कि हम हिस्टामाइन की इफ़ेक्ट से हमारे बॉडी में पर्टिकुलरली इफ़ेक्ट क्रिएट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें कॉमन कोल्ड होता है तो हमारे हमें जो है नेसल कंजेशन हो जाता है। ओके तो जनरल नेसल कंजेशन मतलब बेसिकली हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि हमारा नाक बंद हो जाता है। ओके दैट्स कॉल्ड द नेसल कंजेशन। बेसिकली हिस्टामाइन हमारे बॉडी के जो स्मूथ मसल टिश्यूज़ है या लंग्स के जो स्मूथ मसल टिश्यूज़ है, ब्रोंकाई के जो स्मूथ मसल टिश्यूज़ है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन। तो एट दैट टाइम डॉक्टर वहाँ पर हमें जो दवाई देते हैं दैट इज़ अ एंटी हिस्टामाइन। क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल, ऑल एंटी हिस्टामाइन inhibit the action of the compound histamine which causes inflammation in the body. There are various ways in which action of histamines can be blocked. So you will learn about this in section 16.3.2. Now the next one is on the basis of chemical structure. Yes, drugs का क्लासीफाई किया जाता है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर। इसका मीनिंग, अगर कोई भी ड्रग के बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर सेम होगी तो उस ड्रग को एक कॉमन ग्रुप में रखा जाएगा, मतलब दे विल बी सेम। दैट इज, तो हमने उसको सेम क्यों कंसीडर किया? बिकॉज दे हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर, दे हैव अ सेम स्ट्रक्चर। सो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर बेस पर भी किया जाता है। लेट्स गो, लेट्स स्टडी इन डिटेल। इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग्स। ड्रग क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स, दैट मीन्स जिसका स्ट्रक्चर कॉमन होता है, सेम होता है, एंड ऑफन हैव अ सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसका मीनिंग, मेजरली जिस ड्रग्स का स्ट्रक्चर सेम होता है उनकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सामने उसकी एक्ट करने का जो मेथड है वो भी सेम होता है, मतलब उनकी इफेक्ट भी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, सल्फोनेमाइड हैव अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर, यहाँ पर हमें दिया गया है, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनेमाइड्स। क्लियर? एंड लास्ट वन, ये ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। नाउ व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर टारगेट? हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल को टारगेट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कुछ ड्रग्स है वो कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करेगी, कुछ है वो लिपिड्स को टारगेट करेगी, कुछ है प्रोटीन्स को करेगी, या तो कोई है वो न्यूक्लिक एसिड को टारगेट करेगी। बेसिकली पर्टिकुलर ड्रग है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही टारगेट करती है। तो मॉलिक्यूल को टारगेट करने की एबिलिटी के बेस पर भी ड्रग्स को क्लासीफाई किया जाता है।
Drugs are usually interact with biomolecules such as carbohydrates, lipids, protein and nucleic acid. These are called target molecules or drug target. क्योंकि ये टारगेट मॉलिक्यूल है, ड्रग टारगेट क्यों कहते हैं? बिकॉज ड्रग जो है इसी मॉलिक्यूल को टारगेट करती है. ड्रग possessing some common structural features may have same mechanism of action on the target. इसका मीनिंग जैसे हमने कहा कि ऊपर स्ट्रक्चरल फीचर्स, दैट मीन्स जिस ड्रग का स्ट्रक्चर सेम होगा तो पॉसिबिलिटी है कि उसका जो एक्ट करने का प्रोसीजर है, एक्ट करने की जो प्रोसेस है वो भी या तो जिस मॉलिक्यूल को वो टारगेट कर रही है वो भी सेम होगा. The classification based on the molecular target is the most useful classification for medicinal chemist. Okay students, तो आज यहाँ तक करते हैं. तो हमने 2 टॉपिक किए, एक इंट्रोडक्शन, दूसरा व्हाट इज़ अ ड्रग एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स. ओके, थैंक यू ऑल.